السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالیہ 7 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ غلام مصطفیٰ کمیٹی کے پریزیڈنٹ محمد سرفراز خان کی جانب سے گستاخ رسول سونو دانگر، راجہ سنگھ، وسیم رضوی اور سوامی اوم کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے عظیم الشان پیمانے پر ایک پروٹیسٹ ریلی نکالی گئی آصف نگر تا مہدی پٹنم چوراہے تک، جس کا ایک مقصد و منشا یہ ہے کہ ایک افلاس اور منحوس نامی ایم ایل اے جو گوشہ محل کا ہے، ہم اس کا ہماری زبان سے نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں، وہ منحوس ایم ایل اے جو ہے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ اب تک کئی قائدین کی شانوں میں جو ہے خلاف بول لیتے آیا، اب جو ہے اس کی ہمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے حبیب تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ یہ زمین بناتا نہ یہ آسمان بناتا، ذرہ ذرہ صدقہ ہے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ہے یہ باجاج سنگھ گستاخیاں کر رہا کہ انہوں اتنے بڑھ گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے، اور یہ بدبخت یہ سمجھ رہا کہ حیدرآباد میں کوئی عاشقان رسول نہیں ہے، میں جو منہ کو آیا بول سکتا ہوں بولتے۔ ارے بیٹا راجا، تو جو ہے غیر غلط باتیں نکو کر پھنس جاتا نہیں تو۔ یا عاشقان رسول ایسے لوگ ہیں روزانہ صبح اٹھے تو سر کو کفن باندھ لے کے نکلتے سرکار کی شان میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ حیدرآباد سٹی کا بچہ سر پہ کفن باندھ چکا ہے، بچہ سر پہ کفن باندھ چکا ہے۔ جہاں پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے ہم اپنے جسم کا خون بہانے تیار ہیں۔ جہاں پہ سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں کوئی چیز کو۔ راجہ سنگھ تیرے کو سمجھا رہا ہوں پھر ایک بار کہ جو ہے سمجھ جا، فوراً معذرت چاہ لے، پہلے معذرت بھی چاہا تو اب کچھ ہونے والا نہیں ہے تیرے کو۔ انشاءاللہ تیری خوفناک موت بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ خود تیری خوفناک موت تیری کیا ہوئے گا وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دوسری چیز، راجکوٹ گجرات کی ایک ملونہ رہنے والی ایک جو ہے نسل حرام، ایک اس کا نام ہے سونو ڈنگر۔ وہ سونو ڈنگر 8-9 مہینے پہلے ہماری کمیٹی جو ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کری تھی، سرکار کی شان میں بھیانک طریقے سے ایلفل بکواس بکی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس کا اگر ڈی این اے ٹیسٹ کرائے تو اس کو خود معلوم ہوتی کہ انہیں کتنے باپ کی اولاد۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا جو میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرتا انہیں اصل سے نہیں رہتا، یعنی کہ انہیں حرام کی اولاد رہتا، بلکہ قرآن شریف میں لکھے ہوا ہے ہماری کتاب میں یہ۔
सोनू डंगर अगे हराम की, तेरे को बोलना चाह रहा हूं मैं रफ लैंग्वेज में इस वजह से बात कर रहा हूं कि हमारे दिलों को ठेस पहुंची। आज सरकार की शान में गुस्ताखी, कुरान शरीफ की तौहीन करे ये लोग, इस वजह से मैं बिल्कुल रोरली लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं कि अगर तू जो है वो कुरान शरीफ की बेहुरमती करने के बजाय अगर तू कुरान शरीफ को पढ़ लेती तो खुदा की कसम बोल दो तेरे को हिदायत मिल जाती थी, तू दाखिल इस्लाम हो जाती थी। बल्कि तेरे को अल्लाह तौफीक नहीं दिया, तू जहन्नुमी है, यकीनन तू जहन्नुमी है, और तेरी भी खौफनाक हम देखेंगे मौत कैसी होगी। तीसरी चीज, एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन शिया कम्युनिटी का, यूपी का रहने वाला वसीम रजवी, जो एक बदबख्त इंसान है, अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की शान अक़दस में गुस्ताखी करके आयशा सिद्दीका के नाम पे फिल्म बना रहा है। वो फिल्म के वास्ते भी हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी लेटर दिया हूं मैं जाके, और जो है होम मिनिस्टर साहब को हम तमाम लोग जाके, इनायतुल्लाह खान साहब, सैयद जलाल, नदीर अंसारी, हम लोग पूरे कमेटी के लोग पूरे मिलके जाके दिए हैं। वो फिल्म का नाम क्या है? वो फिल्म का नाम आयशा, हिस्ट्री ऑफ आयशा बोल के कुछ नाम है। वो 36 सेकेंड का ट्रेलर आया तो हम लोग प्रोटेस्ट कर दिए उसके खिलाफ। 36 सेकेंड का ट्रेलर, जो फिल्म निकालने से पहले ट्रेलर आता, वो ट्रेलर आते ही हम लोग प्रोटेस्ट कर दिए। इंशाअल्लाह ताला फिल्म बैन हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता किसी दिन फिल्म रिलीज हो गई तो उसके बाद तो खैर नक्शा अलग रहेगा, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे आप लोग तमाम। और चौथी बात, ये कोई एक स्वामी ओम बोल के एक नया जो है सपोला जो है दूध पी के रेडी होके आया है, समझे आप। सरकार की शान में एक नया सांप आया मार्केट में जिसका नाम है स्वामी ओम बोल के। तू स्वामी ओम रहिए, आप क्या भी कुछ भी होगा, तू क्या भी कर भाई, अगर तेरे को सियासत चलाना है तो किसी के ऊपर क्रिटिसाइज कर। तू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोल के क्यों फेम होना चाह रहा? तू तेरी सोच गलत है, सोच बदलो तुम लोग। गुस्ताखी रसूलुल्लाह, तुम लोग अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेंगे, तुम लोग कुत्ते की मौत मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, कुत्ते की बल्कि सुअर की मौत मरेंगे इंशाअल्लाह, समझे ना। अल्लाह के हबीब की शान में गुस्ताखी मत करिए। मैं आपके 7H चैनल के जरिए तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि जो है अपनी अपनी जगह मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रह के जो है प्रोटेस्ट कीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है अपनी आवाज को बुलंद करिए। ये हिंदुस्तान में जीना है तो मेरे भाई आवाज को बुलंद करना जरूरी। हिंदुस्तान में जीना है तो यकीनन आवाज को बुलंद करना है, और वो आवाज को बुलंद करना है। अगर यहाँ की सरकार की शान अक़दस की आवाज को अगर आप बुलंद करेंगे, सरकार की जो है गुस्ताखी के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करेंगे, तो कल अगर आप मौत तो बरहक है, सबको मौत होंगे, कल बरोज़ क़यामत प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वेलकम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा चैलेंज है और ये ईमान है। हमारा ईमान ही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारी शान अल्लाह के हबीब है, हमारी आन अल्लाह के हबीब है, हमारी जान अल्लाह के हबीब है। हम जी रहे अल्लाह के हबीब के वास्ते और मरेंगे भी अल्लाह के हबीब के वास्ते, और ये जान है अल्लाह के हबीब की दी हुई, ये जान वापस देंगे भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राजा सिंह के ऊपर इतने केसेस होते, इतने हर होते, लेकिन फिर भी देखना भाई, वो तो हमको नहीं मालूम। मैं इंशाअल्लाह ताला देर सही दुरुस्त सही कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर हुकूमत कुछ एक्शन नहीं लेती है तो यकीनन हम कोई सियासी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस की प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको कोई सियासत से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। सियासी कायदीन यहाँ बैठे हैं, इनायत है, सैयद जलाल है। मैं जो है एक मजहबी तंजीम से ताल्लुक रखता हूँ जिसका नाम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी है, जहाँ कहीं भी जो है औलिया अकराम की शान में, अहले बैत अत्हार की शान में, खुलफा राशिदीन की शान में, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अज़वाज मुतहरात की शान में अगर गुस्ताखी होती है तो मेरी आवाज बुलंद, मेरी कमेटी, मेरी आवाज तमाम जो है, ये जान भी दी हुई है सरकार की, सरकार को दे देंगे। वाखिर व दावा अल्हम्दुलिल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी, दबा के बोलिए। बतला दो गुस्ताख नबी को, ये मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है। ये एहतजाजी मुजाहिरा न सियासी है, न मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, न मुसलमानों के भारत के रिजर्वेशन के लिए है, बल्कि आज ये नौजवान एहतजाज रैलियाँ मुनक़्क़िद करे हैं। आज हिंदुस्तान में जो हर ऐरा गैरा निट्ठू खैरा जो अपने आप को हिंदू मज़हब का अलंबरदार कहता है, हिंदुत्व एजेंटों का ताकत का अलंबरदार कहता है, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और हिंदू सियासत में अपने आप मुकाम बनाने के लिए मेरे प्यारे ख़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। हम दुनिया का सारा मुसलमान
हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी जान, हमारी माल, हमारा सब कुछ, हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे कुर्बान है, उनके नाम पर कुर्बान है। अगर कोई गुस्ताख अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आता, अगर कोई गुस्ताख अपनी बेहुदा बातों से बाज नहीं आता, तो हम कानून से मुतालबा करते हैं कि अमन की खातिर पहले आप इक़दाम करें। अगर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें हमारी मुतालिबा को नज़रअंदाज करती है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, हमारे सीने में मचलता हुआ इश्क़ नबी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, तो यकीन जाने इन हाथों से गुस्ताख़ रसूल को सज़ा मिलेगी। इन हाथों से गुस्ताख़ रसूल की गर्दन तन से जुदा होगी। इन हाथों से गुस्ताख़ रसूल को जला दिया जाएगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की शान में बर्दाश्त नहीं, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज मैं शहर हैदराबाद के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो अपनी बेवक्ता बेफजूल ज़िंदगी से बाज आ जाएं और ऐसा पीछा करें गुस्ताख़ रसूल राजा सिंह का। हर रोज़ हर चौराहे पर हर दिन एक एहतजाज मुनक्किद करें, इतना पीछा करें राजा सिंह का कि हुकूमत उसे गिरफ्तार करने मजबूर हो जाए। मैं अपील करता हूँ, ए नौजवानों, आपकी अपील करता हूँ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर आगे निकले, रसूल की हुर्मत के नाम पर आगे निकले, नबी के इश्क में आगे निकले। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि शहर हैदराबाद में एहतजाज का सिलसिला जारी हो जाए और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं इन तमाम चारों को सख्त से सख्त सज़ा दें। अगर ना सज़ा देने की सूरत में तंजीम आवाज़ और गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी अपने एहतजाज को जारी रखेगी जब तक राजा सिंह और दिगर की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। शुक्रिया। किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूँ, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।